Try to pay your attention over here. These type of questions are really very judgmental. इसको जजमेंट के आधार पर ही सॉल्व करना बेस्ट तरीका है. नो फॉर्मूला, नथिंग, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना. They are saying that 10 gram of ice at minus 20 degrees Celsius is mixed with 5 gram of water at 80 degrees Celsius, and they are asking us to find the mixture temperature at equilibrium. Okay, the requirement is to find the mixture temperature at equilibrium. Please pay the kind attention over here. See, we know that hot body is going to give the heat, the hot body is going to give the heat, and the cold body is going to receive the heat. Cold body is going to receive the heat. Therefore, heat given is equals to heat taken. We all know that the solution is something like heat given equals to heat taken. नाउ फॉर सम इंस्टेंस, कुछ समय के लिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं, फॉर सम टाइम हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि मिक्सचर टेम्परेचर जो है ना, वो तो हमें नहीं पता, पर लेट अस डू वन थिंग. ये जो 10 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको 10 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस को लेके हमें चलना है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो उसके लिए कितना हीट लगा पहले तो वो चेक कर लेंगे. Obviously it is going to receive the heat, therefore since it is going to receive the heat, therefore let us say that heat required heat required for ice to get from minus 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius will be equals to mc delta t. mass है 10 ग्राम. C of ice is approximated as 0.5 calorie per gram degree centigrade, and delta T will be final temperature 0 minus of minus 20. It will be equals to 10 into 0.5 into 20, that is equals to 100 calorie. That is equals to 100 calorie. Now if this ice at minus 20 degrees Celsius is brought from minus 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, then it is requiring 100 calorie of heat. Then it is requiring 100 calorie of heat. Now we have to check. What we have to check? Please pay very kind attention. कि अगर आइस को -20 से 0 डिग्री तक लाने के लिए कितना हीट लग रहा है? 100 कैलोरी लग रहा है. क्या ये 100 कैलोरी हॉट बॉडी के पास में अवेलेबल है? क्या ये 100 कैलोरी हॉट बॉडी के पास में अवेलेबल है? लेट अस चेक. इज इट अवेलेबल एट हॉट बॉडी? लेट अस चेक दैट 100 कैलोरी अगर हॉट बॉडी ने दिया तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज होता है वो हम देखेंगे. इज इक्वल्स टू मास है उसका 5 ग्राम. C है obviously since it is water, C is 1 into C is 1 actually into delta T we don't know. Let us keep it as delta T itself. What will be the change in temperature? If it is so, the change in temperature delta T is finding out to be 5 by 100. It will be 20. It will be 20 degrees Celsius. It will be 20 degrees Celsius, isn't it? मतलब वो 80 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा. ऑब्वियसली वो ठंडा होने वाला है तो T फाइनल विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस. अगर हमने 100 कैलोरी हीट रिक्वायरमेंट जो आइस को था -20 से लेके 0 तक आने के लिए, वो 100 कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर हमारे हॉट बॉडी ने दिया
वो जो रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट किया तो हमारे हॉट बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 तक आ गया, तो हमारे हॉट बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 आ गया। टेल मी, इज देयर स्टिल टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल? Is there still temperature difference available? Yes or no? Is there temperature difference available to us? The hot body is at 60 degrees Celsius, the cold body is at 100 degrees Celsius. Is there any temperature difference? क्या अभी भी उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है? Yes or no? Is it yes or no? Yes. And if it is yes, please pay the attention, then heat is still going to flow. Then the heat is still going to flow. अगर हीट अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट है, एक बॉडी है हमारा आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारा जो वाटर है वो है 60 डिग्री सेल्सियस पे। हमारा वाटर कितना है? 60 पे है। 60 और 0 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट फ्लो होगा। एंड ऑब्वियसली क्या होगा कि अभी आइस जो हीट लेने वाला है, सिंस इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। यस और नो? अगर उसको हीट मिला अभी 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को, तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अरे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? क्या ये बात आपको अभी तक की समझ में आ गई? आर यू विथ मी? क्या अब तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया आप मेरे साथ हो? ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ let us say that heat available by water at 80 degrees, at 60 actually, heat available at water at 60 डिग्री सेल्सियस is, जो वाटर अभी 60 डिग्री सेल्सियस पे है ना, उसके पास में कितना हीट अवेलेबल है वो चेक करेंगे। लेट अस से दैट 60 डिग्री वाला वाटर जो है वो 60 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो वो कितना हीट दे सकता है? H अवेलेबल या फिर Q अवेलेबल इज इक्वल्स टू हो जाएगा M है 5 ग्राम, C ऑफ वाटर है 1 इंटू डेल्टा टी है, फाइनल टेम्परेचर 60 माइनस 0, डेल्टा टी विल बी ऑब्वियसली इट इज हीट गिवन, ये हो जाएगा 300, इट विल बी 300 कैलोरी। यस और नो? Yes or no? This is 300 calorie of heat is available. ये 300 calorie of heat कौन लेगा? This heat will be used by ice. This 300 calorie will be used by to convert into water. Therefore 300 is equals to 300 पूरा का पूरा हीट यूज करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है वो चेक करो। कितना अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट होगा वो चेक करो। कितना अमाउंट ऑफ आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा वो चेक करो, ऐसा मुझे कहना है। 300 कैलोरी इज इक्वल्स टू m वी डोंट नो, मास ऑफ वाटर गेटिंग, मास ऑफ आइस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वी डोंट नो, इनटू l है 80। प्लीज सॉल्व एंड टेल मी मास कितना आ रहा है। प्लीज सॉल्व एंड टेल मी मास कितना आ रहा है। इट विल बी 30/8, 30/8 means 15/4 means 7/5 by 2, 3.75. M is equals to 3.75 gram. M is 3.75 gram means वो जो 300 कैलोरी है वो 300 कैलोरी के बेसिस पे हमारा 3.75 ग्राम ऑफ वाटर कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम 3.75 gram of water can be converted from ice to water, can be converted from ice to water.
टोटल अवेलेबल कितना था हमारे पास में? टोटल आइस अवेलेबल, टोटल आइस अवेलेबल, no, total ice available was 10 gram, hot water 5 gram था. Total ice available was 10 gram. Ice converted to water कितना? Ice converted to water कितना? Ice remained कितना? Ice remained is equals to 10 minus 3.75 कितना आ जाएगा? 6.25 gram. Now your water is at 0 degrees Celsius and ice is at also 0 degrees Celsius. Now your water is at 0 degrees Celsius and ice is also at 0 degrees Celsius. Now this is what is the ice. This is what is the ice, 6.5 gram. Mixture क्या है? Your mixture is equals to actually 5 gram of water available था, 5 gram of water plus ये 3.75 ग्राम ऑफ वाटर जो आइस का वाटर में कन्वर्ट हुआ वो प्लस 3.75 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 6.25 ग्राम ऑफ आइस. टेम्परेचर क्या है? ये कंप्लीट सिस्टम है टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस. ये कंप्लीट है 0 डिग्री सेल्सियस पे. नाउ लेट मी, चलो एक बार बता दो, मैं पूरा फिर से रिवाइज करने वाला हूँ. कंप्लीट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रिवाइज. जस्ट टेल मी वंस, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? मैंने जो बातें किया, क्या आपको सारी समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से पूरा बताऊंगा, बट उसके पहले ही मैं पूछना चाहूंगा. यस, ओके. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम जीरो. और एक बार लिख लोगे फिर बता दूं या अभी अभी बता दूं? एक बार लिख लोगे फिर बता दूं या अभी बता दूं? फिर से. चलो ठीक है, लिसन. पूरा 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 स्टोरी बता रहा हूं मैं, पूरा स्टोरी बता रहा हूं, प्लीज. नहीं, एक बार मैं, ठीक है, मैं डबल रिपीट कर दूंगा, एक बार सुन लो. है क्या स्टोरी, क्या है स्टोरी, क्या है, सुन लो पूरा. Initially we were given 10 gram of ice at minus 20 degrees Celsius, and we were having 5 gram of water at 80 degrees Celsius. हमारे पास में क्या था? 10 ग्राम ऑफ आइस था माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस और हमारे पास में वाटर था 80 डिग्री सेल्सियस पे 5 ग्राम. ठीक है, हमने कंसीडर किया कि आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया. तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायरमेंट था? उसके लिए हीट रिक्वायरमेंट था एम सी डेल्टा टी. मास है 10 ग्राम, सी है आइस का 0.5, डेल्टा टी हो गया 0 माइनस 20 विच इज 20. तो उतना, तो हमें ये पता चला कि 100 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायरमेंट है आइस को माइनस 20 से 0 को लाने के लिए. तो ठीक है, हमने वो माइनस 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने वाली जो 100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की. वो पूरी जो हुई वो किसने की? वो एक्चुअली 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस ने की. तो हमने देखा कि अगर 5 ग्राम ऑफ वाटर अगर 80 डिग्री सेल्सियस वाला 100 कैलोरी हीट अगर देगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा. इसलिए हमने क्या किया, 100 इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी किया. तो हमें ये समझा के 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस जो है वो अपना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से घटाएगा 100 कैलोरी देने के लिए. देयरफॉर हमारा जो वाटर था नाउ इट इज एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड हमारे पास में आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे. हमारा वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस पे, हमारा आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब सिंस टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट है. अब जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस अगर प्रेजेंट है तो हीट फ्लो स्टिल गोइंग ऑन होगा.
अब अगर हॉट बॉडी ठंडी होगी तो ऑब्वियसली कोल्ड बॉडी को हीट इस्तेमाल करना है। नाउ आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अगर उसको हीट रिसीव हुआ तो वो आइस से वाटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 60 डिग्री वाला वाटर जो है उसको जीरो पे लाओ। 60 डिग्री वाला वाटर को क्या करो, जीरो पे लाओ। तो हमने क्या किया, 60 डिग्री वाटर को जीरो पे लाया, तो उसने कितना हीट दिया, हमने लगाया mc डेल्टा टी फॉर्मूला, एंड वी गॉट टू नो दैट कि वो 300 कैलोरी ऑफ हीट देगा अगर वो 60 डिग्री से जीरो तक आ रहा है तो। अच्छा, ये 300 कैलोरी कौन इस्तेमाल करेगा, ये 300 कैलोरी इस्तेमाल करेगा आइस, किसके लिए, फॉर गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम आइस टू वाटर, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो यूज इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, अगर 300 कैलोरी इस्तेमाल कर लिया तो कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है वो चेक करो। 300 इज इक्वल्स टू ml, तो हमें समझा के 3.75 ग्राम ऑफ आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। मुझे बताओ, अगर 3 टोटल 10 ग्राम आइस था, सिर्फ 3.5 या 3.75 ग्राम अगर अपना वाटर में कन्वर्ट हो गया तो बचा कहाँ, ऑब्वियसली जो बचा है वो आइस में ही रहा, और जो वाटर में कन्वर्ट हो गया वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, अब उनमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, हीट फ्लो नहीं होगा। देयरफॉर मिक्सचर टेम्परेचर क्या है कि 3.75 वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। देयरफॉर हमारे पास में इनिशियल 5 ग्राम तो था ही साथ 3.75 और वाटर बढ़ गया, तो टोटल हो गया हमारे पास में 8.75 ग्राम ऑफ वाटर एंड 6.25 ग्राम ऑफ आइस, ये हमारा मिक्सचर आ गया। अच्छा, ये ओवरऑल कहाँ पे है, ये ओवरऑल 0 डिग्री सेल्सियस पे है। सो टेल मी, क्या ये मैराथन से आपको फायदा हुआ? Was it helpful?